In the last session, we discussed about the basics of Flutter. So we discussed about what is Flutter, and we learned that it is a Google's portable UI toolkit for building beautiful multi-platform applications. We also learned about Dart, and we also learned about that earlier. We used to develop a native app for each device and maintain several projects. But since now Flutter came into picture, you can use a unique framework and can maintain only one project for all the code bases. And from a single code base, you can have support for iOS, Android, Web, Windows, Mac OS, Linux, embedded device as well with Flutter. So I'm just going to give you a quick walkthrough of what we learned in the last session. And we also learned about the Flutter's foundational pillars. At its core, Flutter is built to be fast, productive, beautiful, open, portable. And then we learned about each of them. How Flutter is. Flutter can be beautiful, fast, productive, open. Then we talked about the underlying framework, and we will see how the underlying framework is we are using in our Flutter apps, since we will be building our first application. Then we learned about Dart, and we learned that Dart is optimized for user interfaces. It is productive and it is fast. And from the LinkedIn data, it says that Flutter is the fastest growing skill among software engineers. It is used by brands like Alibaba, Google Pay around the world, and with hundreds of millions of users. And it is one of the top 15 GitHub repos in the entire world. Then we also learned about Firebase. And in the upcoming sessions, we will be learning how you can integrate Flutter with Firebase. Okay, so now let's just start with what we have to do today. And if you want to see the session that we did on 6th of March, I'm dropping the link of the YouTube. You can see it again here. And if you haven't and you just joined today, then also it's perfectly fine. We can start from today also. Okay. So let's first understand how you can uh, install Flutter on your devices. Did any one of you have already installed Flutter in your systems? Let me know in the chat if you have or if you haven't. Right, yes. If you have, if you haven't, then write no. Okay. Some of you have, some of you haven't. Okay, you have installed it, but it wasn't working properly. I recommend you to join the Discord channel, Discord server, so that I can help you there with your queries, because it is not possible for me to take your queries in the sessions. So I can help you there. And I'll quickly share my screen and tell you how you can install Flutter in your systems. So if you are using a Windows device, what you have to do is, first you have to go to this link. I'll drop the link in the chat also. What you have to do is, first you have to go to this link and you have to select Windows. Then you have to follow the steps written in this, and I'm following the same. You have to install this zip folder. You have to download this zip folder and you have to extract it. I have also shared these steps in the group, and I will share it again in the group. So don't worry, just listen what we are doing. You have to download this zip folder and you have to extract this zip folder. I have already downloaded this zip folder, so I'm not going to do it again. You have to extract it, and what you have to do is you have to extract it in the
C drive of your system. So what you have to do is you have to go to your C drive, then you have to go to users, then you have to go to the your system name or your name, whatever is there for you. For me, it's Dell. Okay. Then you have to extract the zip folder here. So the zip folder name is Flutter Windows 2.10. It should be here. Yeah. So earlier I installed it, so it was 2.8.1 stable version. Now if you install it, then it will be 2.1.0.3. So you have to download this and you have to extract it here. So I have already extracted it in the C. Do remember that what you have to do is you have to extract it in the C users and then the name of your system or what is working for you. There you have to unzip it. You have to extract it. Then what you have to do is inside that folder there will be a Flutter folder as here. Then in that Flutter folder, what you have to do is you have to open the Flutter console. So here the Flutter console is there. I have shared my entire screen, so it must be visible to you. Let me know if it's visible to you. And if you are stuck in any of these steps, then also let me know. So in the Flutter console, what you have to do is you have to type Flutter version and hit enter. Then it will show you the Flutter version that you have installed. Okay, so it is already updated for me. It's 2.1.0.1. Okay, then what you have to do is you have to set the environment variable. Okay, so it's the Flutter console is working, but the command prompt will not give you anything. Okay, I have already installed, so it will work for me on the CMD. If you can just go to the CMD. Okay, if you do go to the command prompt and just write Flutter, then it will show the whole thing for me, but it will not show the whole thing for you, the same thing as it is showing for me, because you haven't set the environment variable. It will show Flutter is not a recognized command or something like that. Okay, in your systems, because you haven't set the environment variable. So what you have to do is you have to set the environment variable. So what you have to do is you have to go to this PC, then you have to go to properties, then you have to, since I'm working on Windows 11, if you are working on Windows 10, then also the procedure is same. You have to right click, then you have to go to right click on this PC, then you have to go to properties, and then you have to go to advanced system settings. In advanced system settings, you have to select environment variables, and in the environment variables, what you have to do is you have to go to the system variable, not user variable, system variables. And in the system variables, there will be a variable named path. You have to click on that, and it will show you the bin folders of all the softwares that you have downloaded till date. So I have already added this thing. I have already added this Flutter bin folder. So what you have to do is you have to go to the C, then users, then Dell for me. Okay, then Flutter Windows 2.8.1 stable, and then you have to navigate to the Flutter folder here, and then you have to go to the bin. Okay, as I said, Flutter, then bin. You have to copy this path. Okay, and after copying this path, you have to go to the new thing, and then you have to add it here. I'm not going to do it because I have already done. So in this way you have to do it. Okay, and then you have to click OK. I'm clicking cancel because I have already done it, and then you have to apply and everything. So this is how you have to set the environment variables.
If you are clear till here, then let me know in the chat. Again, this session is recorded, so it will be available on YouTube. So you can go and reiterate over there, okay? Because you won't be installing it now, you will be installing it later. So we can reiterate on that again. So now if you run CMD and write Flutter version, okay, after setting the environment variable, if you go to CMD and write Flutter hyphen version, then it will show you the Flutter version. And this means that you have installed Flutter perfectly in your systems. Then what you have to do is, if you want to check everything is fine or not, what you have to do is you have to again go to the Flutter console, C, then users, then it is Dell for me. Then you have to navigate to that package, Flutter, and then you have to go to the Flutter console. So if you write Flutter Dr. Hair and hit enter, then it will show you something like this. It is showing many ticks for me, but it will not show the same thing for you. It will show you the crosses. So what you have to do is, and that will be happening because you haven't set. Suppose this, it is showing tick on in the Android Studio thing for me, but it will not show the same thing for you because you haven't set up Flutter in the Android Studio. So what you have to do is you have to set up Flutter in Android Studio also, because we will be developing apps through that only. And if you are doing it through VS Code, then I'll share a link to the VS Code thing also, how you have to install the whole thing. If you are not using Android Studio, then how you have to go through the whole thing through VS Code. So I'll share a link for that also. And for this thing also, I'll share a YouTube video so that you can install the Flutter thing. And I'm closing all the things. So for Android Studio, what you have to do is, in the Android Studio, there are plugins that you have to install. First, you have to install Android Studio. If you haven't, you can go through any YouTube video on how to install Android Studio, and you can install it there. Then what you have to do is, you have to go to the configure section. I have already opened Android Studio, so I'm first going to close it so that I can show you how you have to do it. Give me a second. Okay, so let me start my Android Studio, and then I'll show you how you have to set up Flutter in Android Studio. Android Studio takes time to open, so bear it. Till then, if you have anything to ask, then let me know. I'll also share some resources on how you can learn Flutter at the end of the session. How many of you have already installed Android Studio? Yes, you can do it through VS Code also. And if you want, I'll share the link how you have to install Flutter through VS Code. Because for some people, Android Studio is very heavy. Okay, so this is how it will look when you download Android Studio completely. What you have to do is you have to go to the configure section here in the bottom.
in the configure section, what you have to do is you have to go to settings. Then you have to go to the plugins tab here. In the plugins tab, what you have to do is you have to browse through repositories. I have already done it. In the repositories, I have already gone through the repository thing, so you can do it on your own. Then you have to search for Flutter. If you search for Flutter, I have already installed, so it is showing me disable. What you have to do is you have to install this plugin. After that, you have to install that plugin which has only Flutter in the name, okay, and nothing else. Then what you have to do is you have to click on install, and you have to accept all the pop-ups. And since it will Flutter will also download the Dart plugin, so make sure you accept that pop-up also. I can't show you because I have already installed Flutter. So you have to accept all the pop-ups. Then you have to restart the Android Studio so that the effects can take place. And then after that, what you can see is there will be a new menu item, create a new Flutter project. And if this comes on your Android Studio, then you have successfully installed the Flutter plugin and you can start a new Flutter project. So this is how the whole process is going, from installing Flutter and Dart and installing Android Studio and creating a new Flutter project. If you have any doubts till now, then let me know. And also share a video. You can go through the whole thing again from here. And you can also go through this thing from this YouTube video. Clear till here? If you are clear, then we will go to the next thing and create our Flutter project. Okay. If you are not able to catch up on the whole thing, then this thing will be available on YouTube. You can go and watch it again. Okay. Okay. So now let's hop on to the basics of Flutter. Let's understand first how this whole thing is working. Okay, one more thing. If you are using Flutter, if you are using Android Studio on a 4 GB RAM system, then you won't be able to download the emulator thing. Or if you are able to download it, then it will take a long time to open up and get your project done. Okay, so in that case, what you can do is you can use your own Android or iOS physical device and can run your apps from there. So for that, I'm sharing some steps. First, you have to enable developer mode in your phone. Okay. And this is different for different phones. So you can refer to any YouTube video and you can just type how to enable developer mode on then your model number, your phone model. Okay. Then you have to enable the USB debugging mode. Then you have to use your charging cable or any USB cable. You have to connect your phone with USB. And after you connect your phone with your system with the USB, there will be a pop-up that you have to trust your computer. Okay, so you have to enable it. And then when you open Android Studio, suppose I was trying it on an HTC phone, okay, HTC One phone. So if you are able to do these 4 steps successfully, then on Android Studio, on the top bar, you will be able to see your phone, okay, and you can run your app from there. So how to enable developer mode you can see on YouTube because it is different for different phones. So I can't show you here. Okay. Since most of you had doubts on how to enable this thing, your physical device on Android Studio, so this is how you can do it. So now let's hop on to the Flutter basics. Okay, so let me first tell you that everything inside a Flutter app is a widget.
अभी जो भी मैं बस बोल रही हूँ वो समझो, ठीक है। अभी जब हम एक्चुअली एक फ्लटर ऐप बनाएंगे फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है, तब मैं ये दोबारा से समझाऊंगी, लेकिन अभी जो मैं समझा रही हूँ वो सिर्फ सुनते जाओ। एवरीथिंग इनसाइड अ फ्लटर ऐप इज अ विजिट। जितना भी हम फ्लटर ऐप के अंदर काम कर रहे हैं ना, वो सब विजिट्स पे काम कर रहा है। देर आर डिफरेंट विजिट्स, ठीक है, जो हम फ्लटर ऐप में एक यूज करते हैं। So everything inside a Flutter app is a widget. We built widgets upon widgets. ठीक है, हम एक विजिट के ऊपर दूसरा विजिट रखते हैं, देन उसके ऊपर एक और विजिट रखते हैं, तो हम विजिट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ओके, वी बिल्ड विजिट्स अपॉन विजिट्स। सो सपोज वी आर क्रिएटिंग अ ब्रांड न्यू ऐप। ओके, अभी तक हमने कोई ऐप क्रिएट नहीं किया, अभी हम एक नया ऐप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एंड व्हाट वी आर डूइंग इज, इन दैट ब्रांड न्यू ऐप सबसे पहले हम एक विजिट रखते हैं, स्कैफोल्ड, ठीक है। वी आर in that brand new app, what we are doing is we are first creating a scaffold, ठीक है। स्कैफोल्ड क्या होता है? स्कैफोल्ड होता है, इट इज जस्ट लाइक अ ब्लैंक स्क्रीन फॉर आवर ऐप। मतलब हमारी एक ब्लैंक स्क्रीन है, उसके ऊपर हमने एक स्कैफोल्ड विजिट रखा एंड उसके ऊपर हम विजिट्स और रखते जाएंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय स्कैफोल्ड, ठीक है। तो इन कलर्स पे ध्यान देना, ठीक है। ये पर्पल कलर जो है, ठीक है, अभी मेरी एक स्क्रीन थी, ठीक है, इस स्क्रीन के ऊपर मैंने ये स्कैफोल्ड रखा, ठीक है, जिसने पूरा स्क्रीन का एंटायर एरिया कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद what I'm doing is, on that scaffold widget I am putting an app bar widget, ठीक है। अब हम सब डेली लाइफ में एप्स यूज करते हैं, ठीक है, एंड वी हैव सीन दैट एवरी ऐप हैज एन ऐप बार ऑन द टॉप, ठीक है। तो ये वही ऐप बार है, ठीक है। सो व्हाट इज एन ऐप बार? इट इज अ प्री बिल्ट विजिट दैट लुक्स लाइक एन ऐप बार एंड एक्ट्स लाइक एन ऐप बार, ठीक है। इसके ऊपर हम जो हमारे ऑप्शंस वाला वो होता है आइकन, वो रख सकते हैं, सर्च वाला बार रख सकते हैं, ठीक है। हम इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। सो जैसा भी मैंने बोला था, वी बिल्ड विजिट्स अपॉन विजिट्स। तो स्कैफोल्ड एक विजिट था, उसके ऊपर हमने एक ऐप बार विजिट रखा, ठीक है। यहां तक समझ आया कि विजिट्स से मेरा क्या मतलब है? कुछ चार्ट में एक बार बताओ। ओके, ठीक है। फिर स्कैफोल्ड हुआ, देन ऐप बार हुआ, ठीक है। अब व्हाट वी आर डूइंग इज, हम उसी स्कैफोल्ड के ऊपर एक कंटेनर विजिट रख रहे हैं। अभी कंटेनर विजिट क्या है? इट इज जस्ट अ बॉक्स, इट इज जस्ट अ बॉक्स एंड इट विल कंटेन द कंटेंट ऑफ आवर ऐप, ठीक है। इसके अब इस कंटेनर विजिट के ऊपर हम और विजिट्स रखेंगे, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से क्या होगा, एक विजिट ट्री बनता चला जाएगा। हमने सबसे पहले स्कैफोल्ड यूज किया, स्कैफोल्ड एक विजिट है हमारा, इट इज जस्ट अ ब्लैंक स्क्रीन, ठीक है। ये फाउंडेशनल स्क्रीन है एक तरीके से। इसके ऊपर हमने एक ऐप बार विजिट रखा और अब हमने उसी स्कैफोल्ड के ऊपर एक कंटेनर विजिट रखा, ठीक है। तभी स्कैफोल्ड से दो विजिट्स, स्कैफोल्ड के ऊपर दो विजिट्स थे, इसलिए एक ऐप बार और एक कंटेनर, इस तरीके से मैंने विजिट ट्री बनाया, ठीक है। देन अब इस कंटेनर के ऊपर हमने एक कॉलम विजिट रखा है, ठीक है। अब व्हाट वी आर डूइंग इज, वी आर ऑन आर कंटेनर वी आर पुटिंग अ कॉलम विजिट। वी कैन पुट विजिट्स इनसाइड द कॉलम दैट स्टैक वर्टिकली, ठीक है। अब कॉलम क्यों यूज कर रहे हैं? कॉलम यूज कर रहे हैं ताकि हम अपने जो बाकी विजिट्स हैं उनको वर्टिकली स्टैक कर सकें। अगर हमें हॉरिजॉन्टली स्टैक करना है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली स्टैक करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें रो विजिट यूज करना होगा, ठीक है। अभी हमें अपने जो कॉलम के ऊपर विजिट्स आएंगे उनको वर्टिकली स्टैक करना है, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग अ कॉलम विजिट, ओके। देन so for example, let's just say कि uh, we can put in our column at the top एक रो। अब मैं इस कॉलम के ऊपर एक रो रख रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कॉलम के ऊपर मैंने एक रो विजिट रखा एट द टॉप, ठीक है। अब और दूसरा मैंने क्या किया, एट सेकेंड थिंग व्हाट वी हैव डन इज वी कैन पुट इन अ टेक्स्ट, ठीक है। तो अब देखो, कॉलम के ऊपर जैसे मैंने बताया था वर्टिकली स्टैक कर सकते हैं, तो ऊपर रो रखा एंड नीचे टेक्स्ट रखा, ठीक है, एक टेक्स्ट विजिट रखा। अब व्हाट वी कैन डू इज वी कैन हैव अ कॉलम। अब हमारे पास क्या है, वी हैव अ कॉलम विद टू आइटम्स या टू विजिट्स, वी कैन से row at the top and some text at the bottom, and now we can go deeper into the widget tree and we can have some text widget and an icon widget on the row,
ठीक है, तो इससे तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि कॉलम विजेट में हमने एक रो रखा, ठीक है, एक रो विजेट रखा और एक टेक्स्ट विजेट रखा जो कि वर्टिकली स्टैक थे, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसी रो विजेट में दो और विजेट्स रखे, एक टेक्स्ट विजेट और एक आइकन विजेट, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टली स्टैक्ड है, ठीक है। रो और कॉलम विजेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ, हाउ वी आर यूजिंग अ कॉलम विजेट एंड अ रो विजेट। ओके, सो दिस इज हाउ अ विजेट ट्री इज ग्रोइंग, ठीक है। एंड इसी तरीके से हम सारी फ्लटर एप्स बनाते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज अ विजेट इन अ फ्लटर ऐप, एवरीथिंग इज अ विजेट, ठीक है। हम विजेट्स के ऊपर विजेट्स रखते जाते हैं और इस तरीके से हमारा एक विजेट ट्री बनता जाता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक कोड लैब है, ठीक है, उसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये मैं शेयर करूंगी, ठीक है, मैं ये पूरा कोड लैब नहीं करवाऊंगी, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्टर फ्लटर ऐप तुम्हें बना के दिखाऊंगी, ठीक है, कि कैसे बनता है और जो भी हमने अभी तक पढ़ा है विजेट्स के ऊपर विजेट्स कैसे वो काम कर रहा है, ठीक है, वो हम एक बार समझते हैं, ठीक है। एंड इसका मैं लिंक अभी शेयर कर दूंगी चैट में, ठीक है। सो ये सब हम पढ़ चुके भी हैं और पढ़ सकते भी हो तुम लोग, ठीक है, कि किस तरीके से ये है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये वाली जो कोड लैब है, इसके अंदर वी आर implementing a simple app that can generate proposed names for a startup company, ठीक है, किसी स्टार्टअप कंपनी के नेम्स हम निकाल रहे हैं बस, ठीक है, रैंडम नेम्स, ठीक है। द यूजर कैन सेलेक्ट एंड अनसेलेक्ट नेम्स, सेविंग द बेस्ट ones. And what the code is doing, it is generating 10 names at a time, ठीक है। as the user scrolls more names are generated and कोई लिमिट नहीं है यूजर को स्क्रॉल करने की, ठीक है। जैसे जैसे तुम 10 नाम अगर आ गए स्क्रीन पे, देन तुमने फिर से स्क्रॉल किया तो फिर से और 10 नाम जनरेट हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाट दिस ऐप इज डूइंग। एंड ये ऐप मैं नहीं बनवा रही हूँ, ये ऐप तुम खुद बनाओगे, ठीक है। मैं तुम्हें एक स्टार्टर ऐप बनवा रही हूँ जिसमें तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि हाउ अ फ्लटर ऐप इज वर्किंग, हाउ अ विजेट इज वर्किंग इन अ फ्लटर ऐप, ठीक है। सो ये हम कर चुके हैं अभी कि हाउ वी हैव टू सेट आवर फ्लटर एनवायरनमेंट, ठीक है। हमने फ्लटर एसडीके चाहिए, एक एडिटर चाहिए और एडिटर इस केस में हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो ही है, ठीक है। अगर फिजिकल डिवाइस, अगर तुम्हारे पास एमुलेटर नहीं है तो यू कैन रन इट ऑन अ फिजिकल डिवाइस, एंड वो भी मैं बता चुकी हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। देन इसको तुम कर सकते हो, ठीक है। अब ये स्टार्टर फ्लटर आप बनाना कैसे है, ठीक है। तो सपोज मैं बना के दिखाती हूँ, क्या सिलेक्ट करना है, क्रिएट अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, एंड्रॉइड स्टूडियो खोला, वहां पर सिलेक्ट करना है क्रिएट अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, देन फ्लटर एप्लीकेशन, you have to click on next and then you have to give the name of your app, ठीक है। सपोज यू कैन स्टे यहाँ पर स्टार्टर, यहाँ पर उन्होंने नाम दिया हुआ था स्टार्टअप नेमर, ओके। सो वही कर सकते हैं, स्टार्टअप एंड नेमर, ठीक है। स्टार्टअप नेमर तुमने नाम दिया प्रोजेक्ट को, ठीक है। फ्लटर एसडी के बाद बिल्कुल मत बदलना, ये एज इट इज रहना चाहिए। प्रोजेक्ट लोकेशन चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि तुम सी ड्राइव में ना सेव करके अपना प्रोजेक्ट किसी और लोकेशन पे सेव करो तो ये कर सकते हो, बट इसको मत छेड़ना, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर हमारे फ्लटर के सारे डेवलपमेंट टूल्स हैं, अगर यहाँ से अब तुमने छेड़खानी करी तो फिर पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा, ठीक है, वो रन ही नहीं होगा। सो इसको मत छेड़ना, फ्लटर एसडी के पाथ को, प्रोजेक्ट लोकेशन को यू कैन चेंज। देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ नहीं करना, इसको छोड़ देना। देन यू हैव टू क्लिक ऑन फिनिश। सो दिस विल क्रिएट अ फ्लटर प्रोजेक्ट फॉर यू। अब जब यहाँ पर फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट होगा ना, तो क्या होता है कि पहले से फ्लटर टीम ने हमें कोड लिख के दिया होता है, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें बना के दिखाया, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले से कोड लिखा हुआ है, कुछ कोड लिखा हुआ है यहाँ पे पहले से, ठीक है। अब मैं तुम्हें रन करके भी दिखाती हूँ कि ये कर क्या रहा है। ये जो फ्लटर टीम है हमारी, जिन्होंने ये ऐप हमें लिख के दिया है पहले से, कि कर क्या रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे नो डिवाइस सेलेक्टेड दिखाएगा। सो क्या करना पड़ता है कि जो तुम्हारा ये है एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर, तुम्हें ये खोलना पड़ता है। एंड मैंने ये 3 एम्यूलेटर्स पहले से इंस्टॉल कर रखे हैं, मैं इसको यहीं से रन करती हूँ बिकॉज वो यहाँ पे शो नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि उसको समझ नहीं आता है कि हम किस पे रन कर रहे हैं, iOS पे कर रहे हैं, एंड्रॉयड पे कर रहे हैं। सो यहाँ से मैं इसको रन करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लॉन्च करती हूँ इसको। अब दिस विल टेक टाइम। ओके, इट इज ऑलरेडी रनिंग। ये मेरा रन हो चुका है, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट वी आर क्रिएटिंग, ठीक है, ये हम बनाएंगे, ये वाला फ्लटर ऐप, ठीक है। यहाँ से इसको क्लोज कर देना। अब ये देखो, यहाँ पे तुम्हें दिखाएगा एंड्रॉइड एसडीके बिल्ड फॉर
x86, ठीक है। एंड अगर तुम चाहते हो उसको क्रोम पे चलाना या एज पे चलाना या विंडोज पे चलाना, तो यू कैन डू इट, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, इट्स अ क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन। तो मैं सिंस विंडोज पे काम कर रही हूँ, दैट इज वाई आई कांट रन इट ऑन iOS, ठीक है। आई नीड अ फिजिकल डिवाइस, ठीक है। एंड तुम लोग यूट्यूब पे देख लेना कि हाउ यू हैव टू कॉन्फ़िगर द होल थिंग फॉर अ फिजिकल डिवाइस जो कि iOS है। एंड्रॉइड का मैंने तुम्हें बता दिया, iOS का यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। ओके, तो सिंस आई एम यूजिंग एन एम्यूलेटर, मैं कोई फिजिकल डिवाइस यूज नहीं कर रही, तो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट। अब इसको रन करके देखते हैं कि ये जो पहले से टीम मैंने ऐप लिखा हुआ है ये क्या काम कर रहा है, ठीक है। नाउ दिस विल टेक टाइम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? विजिट्स का कॉन्सेप्ट समझ आया कि हाउ वी आर लेइंग विजिट्स ऑन विजिट्स इन अ फ्लटर ऐप? Okay. While installing, if you have any doubt, then please ping me on Discord and I will help you there, because it is not possible me to conduct every session for a doubt. Discord link. Okay, I'll share the Discord link. You can find all the links here. When you run the app for the first time, it will take time, but it will not take time when you are building the app. Okay, for the first time, it will take time. After we are done with this first Flutter app, I'll share some code labs. You can try those code labs, and I'll also share some of the resources from where you can learn Flutter from the basics. Okay, so now my app, my project will run. सो दिस इज व्हाट द ऐप लुक्स लाइक, जो कि पहले से फ्लटर टीम ने लिख के रखा है कोड, ठीक है। जब भी तुम नया फ्लटर प्रोजेक्ट बनाओगे तब ये पहले से लिखा हुआ होगा, ठीक है। एंड व्हाट इट इज डूइंग इज, ये जो आइकन है, ये जो हमारा आइकन बटन है, ठीक है, इस पे तुम जितनी बार क्लिक करोगे ना, ये इंक्रीज होता जाएगा नंबर, ठीक है। दिस इज व्हाट दिस थिंग इज डूइंग, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा है ये ऐप, सिर्फ और सिर्फ मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। इस इमेज आइकन, ये जो है हमारा बटन, ठीक है, इस पे मैं क्लिक कर रही हूँ एंड यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने तुम्हें फर्स्ट सेशन में बताया था कि इसमें एक चीज होती है हॉट रीलोड, ठीक है, वो कैसे काम करती है, एक बार वो देखते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर लेट मी गो टू द ऐप बार थिंग, ठीक है। अभी इस ऐप बार का कलर, एक मिनट, अभी इस ऐप बार का कलर देखो, इट इज ब्लू, ठीक है। So let's just change the color of this app bar to, for example, red.
ठीक है। ओके, यहाँ पर my system is getting slow. Never mind. Let us change it to red. ठीक है। अब what I'll do is I'll just hit Control S. ठीक है, for Windows I'll just hit Control S. ठीक है। Now let's see what happens. देखो, स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, मैंने पूरा ऐप रन किया था यहाँ से, ठीक है? तो क्या हुआ था, मेरा पूरा ऐप रन हुआ था दोबारा से, ठीक है? मतलब मेरा पूरा ऐप रन हुआ था, ठीक है? अभी मैंने क्या किया, इसको कहते हैं हॉट रीलोड का फीचर। अभी मैंने सिर्फ कंट्रोल एस दबाया, ठीक है? एंड मेरे को मेरे यूजर इंटरफेस में इंस्टेंट चेंज दिखा, ठीक है? अभी टाइम नहीं लगा ना, इन 4906 मिली सेकेंड्स में ये मेरा दोबारा से रन हो गया, ठीक है? सो इस तरीके से जब हमें यूआई में चेंजेस दिखते हैं, इंस्टेंटली चेंज दिखते हैं, ठीक है? तो हमें एक्चुअली ऐप बनाने में एंड उसको यूजर इंटरफेस में हम जितने चेंजेस चाहते हैं वो फटाफट से हम देख सकते हैं, ठीक है? दैट इज व्हाई हॉट रीलोड का फीचर फ्लटर में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था, ठीक है? सो दिस इज व्हाट हॉट रीलोड फीचर इज, ठीक है? मैंने लास्ट सेशन में बताया था ना कि मैं बताऊंगी, तो यहाँ तक समझ आया हॉट रीलोड कैसे काम कर रहा है? ओके, सो ये मैं पूरा कोड तो नहीं समझाऊंगी, ठीक है? मेरे को बस बताना था कि हॉट रीलोड का फीचर कैसे काम कर रहा है, ठीक है? नाउ लेट्स जस्ट बिल्ड आवर फर्स्ट ऐप, ठीक है? इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ अभी, ठीक है? सो अब एक बार जरा अपनी कोड लैब में आते हैं और यहाँ देखते हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है? सो हमने इस तरीके से चला लिया, ठीक है? अब हमें क्या करना है, जो मेन डॉट डाट, यहाँ पर देखो मेन डॉट डाट में जितना भी कोड लिखा हुआ है इसको कंट्रोल ए करके डिलीट कर दो, ठीक है? क्योंकि ये पहले से लिखा हुआ था, हम स्क्रैच से लिखते हैं कोड, ठीक है? अब मैं तो स्क्रैच से नहीं लिखूंगी बिकॉज बहुत टाइम जाएगा, मैं समझा दूंगी स्क्रैच से, ठीक है, कि क्या हम कर रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी सिर्फ हम एक वही स्कैफोल्ड होगा, ऐप बार होगा, ठीक है? और सेंटर में एक टेक्स्ट विजेट होगा जो कि प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है? तो मैं अभी के लिए ये पूरा कोड अभी मैं समझाऊंगी। अभी मैं यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर रही हूँ, ठीक है? अब कंट्रोल सी कंट्रोल भी करते हुए क्या होगा, कई बार इंडेंटेशन गलत हो जाती है, ठीक है? एंड इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पाइथन में इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, जैसे यहाँ पर भी इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट क्लिक एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन रीफॉर्मेट कोड विद डार्ट एफएमटी, ठीक है? तो इससे क्या होगा, अगर कोई फॉर्मेटिंग इश्यूज होंगे तो वो अपने आप सही हो जाएंगे, ठीक है? यू डोंट हैव टू डील विद द इंडेंटेशन इश्यूज है, ठीक है? अब क्या करते हैं, अब मैं इस ऐप को रन करती हूँ, ठीक है? फिर मैं स्क्रैच से बताती हूँ कि हमने क्या क्या किया है इसमें, ठीक है? अब ये मैंने दोबारा से रन की है तो ये दोबारा से टाइम लेगी, मैं हॉट रिलोड नहीं कर सकती थी, ठीक है? बिकॉज ये मेरा नया पूरा कोड है, ठीक है? तो मुझे इसको दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। इसको कहते हैं हॉट रीस्टार्ट, ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ यू देयर विल बी इश्यूज, ठीक है? जो इंडेंटेशन में होंगे, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट क्लिक एंड यू कैन रीफॉर्मेट कोड विद डार्ट एफएमटी। इफ यू आर यूजिंग वीएस कोड देन यू कैन राइट क्लिक एंड सिलेक्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एंड टर्मिनल पे ऐसे कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा ऐप बनेगा। एक स्कैफोल्ड होगा, स्कैफोल्ड पे एक ऐप बार होगा, ऐप बार पे एक टेक्स्ट विजेट होगा जिसपे हम लिखेंगे वेलकम टू फ्लटर, एंड फिर स्कैफोल्ड पे भी एक टेक्स्ट विजेट होगा, ठीक है? जिसपे हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। और ये कहाँ होगा, सेंटर में, सेंटर विजेट होगा, ठीक है? सेंटर के अंदर एक टेक्स्ट विजेट होगा और उस पर हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। और अभी मैं इसका विजेट ट्री भी दिखा दूंगी कि हाउ इज इट वर्किंग, ठीक है? जब तक ऐप रन हो रहा है, ओके, सो दिस इज व्हाट द ऐप लुक्स लाइक, ठीक है? जब ऐसे कोड लिखोगे तो ऐप ऐसे दिखेगा, ठीक है? अब मैं समझाती हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है, ठीक है? So what this example is doing is this example is creating a material app, ठीक है? गूगल का मटेरियल जो है हमारा, वो यूज करता है हमारा फ्लटर, ठीक है? बिकॉज फ्लटर इज डेवलप्ड बाय गूगल, ठीक है? तो हम मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है? एंड व्हाट इज मटेरियल, इट इज अ विजुअल डिजाइन लैंग्वेज
दैट्स स्टैंडर्ड ऑन मोबाइल एंड द वेब, ठीक है, इसीलिए हम मटेरियल यूज कर रहे हैं बिकॉज मोबाइल एंड वेब पे स्टैंडर्ड है, ठीक है। अगर तुम चाहो ना तो तुम यहाँ जाके देख भी सकते हो कि व्हाट इज मटेरियल, ठीक है, मटेरियल डिजाइन क्या है, ठीक है, एंड गूगल क्यों यूज कर रहा है, वो क्या मटेरियल सिस्टम है, ठीक है। सो यू कैन गो थ्रू द होल थिंग हेयर, ठीक है, मैं इसका लिंक भी डाल देती हूँ चैट बाद में देखने के लिए। ओके, सो लेट्स कम बैक टू व्हाट वी वर डूइंग, ठीक है। सो यहाँ देखो, ये पैकेज इंपोर्ट है, ठीक है, यहाँ से मेन, जैसे कि हम सबको पता है कि मेन इट इज द स्टार्ट ऑफ एवरी दिस थिंग, द कोड, ठीक है। तो मेन इज द एंट्री पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर हम ऐप रन कर रहे हैं और हमारा जो ऐप रन है वो है हमारा माई ऐप, ठीक है। अब माई ऐप जो है क्लास, उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं स्टेटलेस विजिट से, ठीक है। सो द ऐप इज एक्सटेंडिंग स्टेटलेस विजिट, ठीक है, विच मेक्स द ऐप इटसेल्फ अ विजिट, ठीक है। अब ये माई ऐप को एक विजिट ही बना दिया है इस स्टेटलेस विजिट ने, ठीक है। अगर तुम इस पे हवर करोगे ना तो तुम्हें पता लगेगा कि व्हाट दिस होल थिंग इज अबाउट, ठीक है, एंड तुम पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है सिर्फ हवर करने पर ही, ठीक है। देन as I said, in Flutter, almost everything is a widget, including alignment, padding, layout, सब कुछ, ठीक है, जो भी हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर सब कुछ एक widget है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, अब ये सब छोड़ दो, ठीक है। अगर तुम सिर्फ इतना लिखोगे ना, जब जब तुम लोग ये लिखोगे, ठीक है, अगर तुम लिखते हो STLS, ठीक है, अगर तुम डबल एस ऐसे करके लिखते हो और एंटर दबाते हो, ठीक है, तो यहाँ देखो ये अपने आप एक बॉयलर प्लेट कोड लिख के आ जाता है, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट नेम इट, ठीक है, इस तरीके से। ये हो रखा है पहले से, इसको मैं इसलिए डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। दोबारा मतलब पूरा पूरा नहीं लिखना होता है, ठीक है, अभी जितना समझने की जरूरत है सब उतना समझते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि माई ऐप इज एक्सटेंडिंग स्टेटलेस विजिट, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर मैं मटेरियल ऐप रिटर्न कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बताया था, मटेरियल ऐप, व्हाट इज मटेरियल, इट इज अ विजुअल डिजाइन लैंग्वेज दैट इज स्टैंडर्ड फॉर बोथ वेब एंड मोबाइल, ठीक है। तो मैं मटेरियल ऐप में, ठीक है, टाइटल मैंने दिया वेलकम टू फ्लटर, ठीक है। अब मैं स्कैफोल्ड विजिट यूज कर रही हूँ, ठीक है, होम में मैं क्या यूज कर रही हूँ, स्कैफोल्ड विजिट। स्कैफोल्ड विजिट कहाँ से आया है, ये आया है मटेरियल लाइब्रेरी से, यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से आया है मटेरियल लाइब्रेरी से, एंड इट इज प्रोवाइडिंग अ डिफॉल्ट ऐप बार। ये क्या क्या प्रोवाइड करता है स्कैफोल्ड, एक ऐप बार, टाइटल और एक बॉडी प्रॉपर्टी देता है, ठीक है, दैट होल्ड्स द विजिट ट्री फॉर द होम स्क्रीन। अभी हमने विजिट ट्री पढ़ा था ना, ठीक है, तो होम स्क्रीन का जो विजिट ट्री है ना वो ये पूरा होल्ड करता है, ठीक है, हमने स्कैफोल्ड से ही स्टार्ट किया था, ठीक है। सो दिस इज हाउ द होल थिंग इज गोइंग, ठीक है। देन अब विजिट का जो मेन काम होता है ना, ये क्या काम होता है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड अ बिल्ड मेथड, ठीक है। ये देखो, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, विजिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड अ बिल्ड मेथड दैट डिस्क्राइब्स हाउ टू डिस्प्ले द विजिट इन टर्म्स ऑफ अदर और लोअर लेवल विजिट्स, ठीक है। अभी हमने ये सब विजिट्स ही पढ़े हैं, स्कैफोल्ड एक विजिट है, ऐप बार एक विजिट है, टेक्स्ट एक विजिट है, एंड इफ यू वांट मैं इसका विजिट ट्री दिखाती हूँ एक बार, ठीक है, मैंने पहले से बना के रखा है, यहाँ देखना ध्यान से। ये देखो, मटेरियल ऐप के अंदर वी यूज्ड स्कैफोल्ड, ठीक है। स्कैफोल्ड में वी हैव टू विजिट्स, वन इज ऐप बार, ठीक है, एंड वन इज सेंटर विजिट। ये देखो, ये तुम्हारे लिए खुद ही बना के दे रहा है, यहाँ देखो ये जो लाइंस देख रहे हो, ये देखो ये ऐप बार का है, ठीक है, एंड ये सेंटर विजिट। तो स्कैफोल्ड के मटेरियल ऐप से आया स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड से आए दो विजिट्स, ऐप बार एंड सेंटर, ठीक है। ऐप बार में मैंने क्या क्या यूज किया, अगर तुम्हें ऐप दिखाऊं, ठीक है, इस ऐप को भी देखो, यहाँ स्कैफोल्ड था, ठीक है, मटेरियल ऐप था, सबसे पहले मटेरियल ऐप आया, मटेरियल ऐप में एक स्कैफोल्ड आया, ठीक है। अब स्कैफोल्ड में व्हाट आई डिड वाज एक ऐप बार, ठीक है, और एक सेंटर विजिट। अब सेंटर विजिट क्या है, ये हेलो वर्ल्ड जिस पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये है हमारा सेंटर विजिट। तो तुम्हें दिख रहा है स्कैफोल्ड पे एक ऐप बार है, और ऐप बार और उसी स्कैफोल्ड पे एक सेंटर विजिट है जिसके अंदर हमने टेक्स्ट विजिट रखा है, और उस टेक्स्ट विजिट में हमने क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है।
तो ऐप बार आया। ऐप बार में हमने टाइटल सेट किया ऐप बार का वेलकम टू फ्लटर। ये देखो, ये जो ऐप बार है इसके ऊपर हमने एक टेक्स्ट विजेट रखा। ऐप बार के ऊपर एक सेंटर विजेट, ठीक है। सेंटर इसमें मैंने नहीं लगाया सेंटर विजेट, ठीक है, तो यू कैन एलिमिनेट इट यहाँ से, ठीक है, नहीं तो तुम यहाँ लगा भी सकते हो, ठीक है, एक सेंटर विजेट। ऐप बार अगर सेंटर विजेट लगाओगे तो ये सेंटर में आ जाएगा वेलकम टू फ्लटर, ठीक है। ऐप बार में मैंने क्या यूज किया है, एक टेक्स्ट विजेट, इसको हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है, ये नहीं है, ऐसे है, ठीक है। हाँ, तो ऐप बार में व्हाट आई डिड वाज मैंने टेक्स्ट विजेट यूज किया और उस टेक्स्ट विजेट के अंदर मैंने लिखा वेलकम टू फ्लटर, ठीक है। तो मेरे ऐप बार पे एक टेक्स्ट विजेट आया जिसमें मैंने लिखा वेलकम टू फ्लटर, ठीक है। अब स्कैफोल्ड की बॉडी में मैंने एक सेंटर विजेट लगाया, मैंने बताया था ना, ये स्कैफोल्ड है, ठीक है। स्कैफोल्ड में मैंने एक ऐप बार बनाया। अब जो उसका बॉडी है, ये जो एरिया है हमारा लिखने का, ठीक है, कंटेंट वाला, इसमें मैंने एक सेंटर विजेट यूज किया और उस सेंटर विजेट में मैंने एक टेक्स्ट विजेट लगाया और उस टेक्स्ट विजेट में मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। यहां तक समझ आया जो मैंने अभी बताया कि किस तरीके से ये ऐप बना है, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला था, फ्लटर जो है विजिट्स पे काम कर रहा है, एवरीथिंग हेयर इज अ विजिट, ठीक है, विजिट ऑन विजिट, ठीक है। तो स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड पे फिर ऐप बार, फिर ऐप बार के ऊपर एक टेक्स्ट विजिट और उस टेक्स्ट विजिट में वी रोट वेलकम टू फ्लटर, ठीक है। फिर उसी स्कैफोल्ड पे वी हैड अ सेंटर विजिट, ठीक है, उस सेंटर विजिट में वी हैड अ टेक्स्ट विजिट एंड उस टेक्स्ट विजिट में वी रोट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस ऐप इज डेवलप्ड इन फ्लटर। ये समझ आया? अगर ये समझ आया है तो इसमें एक थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस सेंटर में टेक्स्ट विजेट की जगह हम एक इमेज विजेट रखते हैं, ठीक है। और उस इमेज विजेट के अंदर हम एक नेटवर्क इमेज लेते हैं, ठीक है। और उस नेटवर्क इमेज से हम क्या करेंगे, हम अ, किसी भी यूआरएल से, मतलब किसी भी वेबसाइट से हम जो है वो पिक्चर उठाएंगे एंड अपनी ऐप पर डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। ये मैंने कर रखा है, ठीक है, इसलिए मैं वो प्रोजेक्ट खोल के दिखा देती हूँ, बिकॉज अगर मैं दोबारा यहाँ क्रिएट करूंगी तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं तुम्हें फटाफट से दिखा देती हूँ कि वो कैसे होगा। देखो, ये वही है जो हमने किया है, बस इसमें एक छोटा सा चेंज किया है। ये मैं क्या करती हूँ, अब मैं ये हेलो वर्ल्ड की जगह पर ऐसे कमेंट कर दिया है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो। अब मैंने क्या किया, सेंटर विजेट के अंदर एक चाइल्ड लिया, ठीक है, मतलब एक चाइल्ड विजेट जो कि क्या होगा, इमेज विजेट, ठीक है, यहाँ पर। और उस इमेज विजेट के अंदर मैंने एक इमेज ऐड की और वो इमेज किस टाइप की होगी, नेटवर्क इमेज। हमारे पास बहुत टाइप की इमेजेस होती है एंड तुम कुछ, मतलब तुम क्या कर सकते हो, तुम जाओ फ्लटर डॉक्यूमेंटेशन पे, यहाँ पर अगर तुम लिखो flutter डॉट डेव, ठीक है, और यहाँ पर अगर तुम जाओ डॉक्यूमेंटेशन पे, डॉक्स पे जाकर, ये डॉक्यूमेंटेशन है फ्लटर की, इसका मैं लिंक डाल देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा कि किस टाइप का विजेट होता है, कितने टाइप के बटन होते हैं, कितने टाइप की इमेजेस होती हैं, ठीक है। तो तुम यहाँ से देख सकते हो कि कितने टाइप की इमेजेस और ये सब होता है, ठीक है। और जो कोड लैब्स है ना उसमें भी बताया हुआ है, ठीक है, सो डोंट वरी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब ये नेटवर्क इमेज क्या है, यहाँ पर देखो नेटवर्क इमेज ने क्या लिया, एक यूआरएल लिया, ठीक है। अगर मैं इस यूआरएल पे तुम्हें जाके दिखाऊं कि कौन सी इमेज है यहाँ पर, वही इमेज हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। सो लेट्स सी टू इट कि क्या है वो। देखो ये वाली इमेज है एंड वी वांट कि ये वाली इमेज हमारे इस ऐप के सेंटर में, जहां पर अभी हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये इमेज यहाँ पर आ जाए, ठीक है। व्हाट दिस इज व्हाट वी हैव टू अचीव, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये हम कैसे अचीव करेंगे, जैसे मैंने बताया कि कुछ नहीं करना, सेंटर विजिट के अंदर तुमने एक चाइल्ड विजिट बनाया, इमेज विजिट, और उस इमेज विजिट के अंदर तुमने इमेज ले ली, इमेज इज अ प्रॉपर्टी फॉर एन इमेज विजिट। वहां पर तुमने नेटवर्क इमेज एक दोबारा से वो किया, विजिट यूज किया, और उस विजिट के अंदर तुमने क्या किया, ये यूआरएल डाल दिया। अब इसको रन करते हैं, मुझे दोबारा से रन करना पड़ेगा बिकॉज ये पुराना वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है, एंड ये वाला जो मैंने अभी चलाया वो नया है, तो इसलिए मैं इसको रन करके दिखाती हूँ दोबारा से। एंड ये
लेगा 1 मिनट। इतने किसी को अगर कोई डाउट है यहाँ तक तो मुझे बताओ। यहाँ तक समझ आ गया? ओके। मैं ये सब कुछ डिस्कॉर्ड पे भी डाल दूँगी, जितने मैंने रिसोर्सेज़ यहाँ शेयर किए हैं चैट में। हॉट रीलोड फीचर इसलिए अच्छा है बिकॉज़ हमारे यूज़र इंटरफ़ेस में हमें बार-बार इतना टाइम नहीं लगाता, मतलब रन नहीं करना पड़ता, बार-बार हॉट रीस्टार्ट नहीं करना पड़ता है। हॉट रीलोड में हमें इंस्टेंट चेंज दिखता है। दैट इज़ व्हाई वी यूज़ हॉट रीलोड मोर ऑफ़न। जब कोड लैब्स करोगे, तो उसमें बहुत सारी नई चीज़ें आएँगी, ठीक है? तो फ्लटर डॉक्यूमेंटेशन इज़ द बेस्ट रिसोर्स जो कि तुम देख सकते हो बार-बार, अगर कहीं पर भी तुम फँस जाते हो। एंड अगर तुम्हारे को कोई एरर आता है, तो ऐसा नहीं है कि वो एरर तुम्हारे पास पहली बार आया है, ठीक है? बहुत लोग पहले से काम कर रहे हैं फ्लटर पे, ठीक है? और किसी भी लैंग्वेज पे, तो ऐसा नहीं है कि वो एरर तुम्हारे पास पहली बार आया होगा। उस एरर को कॉपी पेस्ट किया करो गूगल पे और स्टैक ओवरफ्लो पे जाके उस समझा करो कि वो एरर क्यों आया, एंड उसको कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? मेरे पास इनसफिशिएंट स्टोरेज हो चुका है इसके अंदर, तो 1 सेकंड मैं इसमें से फटाफट पुराना वाला ऐप डिलीट करती हूँ। मेरे एमुलेटर में इनसफिशिएंट स्टोरेज है, ताकि मैं ये वाला ऐप रन कर सकूँ। ये देखो यहाँ पर इट इज़ शोइंग मी इनसफिशिएंट स्टोरेज, ठीक है? तो दिस इज़ बिकॉज़ मैंने पहले से काफ़ी ऐप्स इसमें डाल रखे हैं। तो फटाफट से जो हमने पुराना ऐप अभी रन किया था उसको डिलीट कर देते हैं एंड देन फिर इसको दोबारा से रन करते हैं। ओके, अब दोबारा से रन करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अब चल जाना चाहिए। हमारे पास एसेट इमेज भी होती है। एसेट इमेज का क्या काम होता है, अगर हम किसी एक्सटर्नल रिसोर्स से नहीं चाहते हैं कि हमारी इमेज किसी एक्सटर्नल रिसोर्स से आए, जैसे यूआरएल से आ रही है अभी, ठीक है? अगर हम चाहते हैं वो विद इन द एप्लीकेशन आए, हम अपने एप्लीकेशन के अंदर ही इमेजेस स्टोर करके रखें और वहां से हमारी इमेजेस रेंडर हो, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए हम यहाँ नेटवर्क इमेज की जगह एसेट इमेज वाला विजेट यूज करते हैं, ठीक है? और वो एसेट इमेज वाला जो विजेट होता है ना, वो क्या लेता है? वो लेता है लोकेशन ऑफ द इमेज, ठीक है? जैसे यहाँ पर अगर तुम्हें दिख रहा हो तो मैंने एक ये बनाया हुआ है, डायरेक्टरी क्रिएट की हुई है इमेजेस नाम से, ठीक है? ये मैंने कैसे क्रिएट की थी? यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, जो प्रोजेक्ट है मेन प्रोजेक्ट, उस पर जब राइट क्लिक करोगे, सिस्टम धीरे चल रहा है, 1 मिनट। राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, अब न्यू पर डायरेक्टरी पे क्लिक करोगे, जब डायरेक्टरी पे सपोज तुमने इमेजेस नाम की डायरेक्टरी क्रिएट की, ठीक है? अभी मेरी पहले से बनी हुई है इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ, ठीक है? इमेजेस नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करना, ठीक है? तो ऐसी डायरेक्टरी बन जाएगी। अब क्या करना, अपनी जो भी तुम्हें इमेज चाहिए, ठीक है? सपोज ये वाली इमेज दिखाती हूँ, सपोज ये वाली इमेज है, ठीक है? ये वाली इमेज मेरे सिस्टम में पड़ी हुई थी, मैंने क्या किया, मैंने इसको ड्रैग किया इस वाली डायरेक्टरी में, ठीक है? जहाँ पे ये थी मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पे डाल दिया, तो मेरी ये यहाँ पर आ गई, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास एक यामल फाइल होती है, pubsec
.yaml, इसमें जाकर तुम यहाँ पर कहीं पर ना एसेट्स देखना कि कहीं पर लिखा होगा एसेट्स, ठीक है? और वो क्या होगा, वो तुम्हारा कमेंट होगा पहले से, ठीक है? तो पहले उसको अनकमेंट करना और इंडेंटेशन का ध्यान रखना, ठीक है? यहाँ पर 2 2 स्पेसेस जितना इंडेंटेशन होना चाहिए, ठीक है? ये हमेशा याद रखना, 2 स्पेसेस जितना इंडेंटेशन यहाँ होना चाहिए और एसेट्स के अंदर जो भी हम लोकेशन डाल रहे हैं, 2 स्पेसेस का इंडेंटेशन यहाँ होना चाहिए, ठीक है? 1, 2 एंड सिमिलरली यहाँ पर भी 1, 2 याद रखना 2 का, ठीक है? और इसमें क्या करना, अपनी डायरेक्टरी का नाम और स्लैश डाल देना। अब खाली स्लैश डालने से क्या होगा, इसके अंदर अभी तो एक ही इमेज है और अगर और बहुत सारी इमेजेस होंगी ना, तो क्या होगा, खाली स्लैश डालने से, स्लैश डालने का मतलब है कि तुम जितनी इमेजेस इस डायरेक्टरी के अंदर है वो सारी रेंडर करना चाहते हो अपनी स्क्रीन पर, ठीक है? और वो हम कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग कोड कि किस तरीके से हमें इमेज को रेंडम करना है। फिर यहाँ पे तुम रेंडर करना है, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे तुम लिखोगे एसेट इमेज, फिर यहाँ पे तुम लोकेशन लिखोगे एंड दिस इज व्हाट ऑल यू हैव टू डू, ठीक है? वो इमेज तुम्हारी रेंडर हो जाएगी। बट अगर तुम अभी ये करने की कोशिश करोगे ना, तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, बिकॉज हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है फ्लटर के अंदर स्टेटलेस विजिट एंड स्टेटफुल विजिट का, ठीक है? जो कि अभी हम अपकमिंग सेशंस में पढ़ेंगे कि क्या होता है, ठीक है? तो स्टेटलेस विजिट में रेंडर होने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है? बट स्टेटफुल विजिट में जल्दी रेंडर हो जाती हैं, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं तुम्हें नेटवर्क इमेज से करके दिखा रही हूँ, बिकॉज एसेट इमेज स्टेटलेस विजिट में नहीं हो रही थी रेंडर, ठीक है? अब देखो मैंने रन किया, ये वाला ऐप जो है अब ये रन हो गया एंड ये नेटवर्क से मेरी उठ के इमेज यहाँ पे आ गई है, ठीक है? यूजिंग दिस लिंक, ठीक है? यूजिंग दिस नेटवर्क इमेज एज विजिट, ठीक है? समझ आया? तो इस तरीके से हाउ दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग द ऐप। समझ आया? इतना ही मेरे को बताना था पहली ऐप में। अब इसके बाद व्हाट यू कैन डू इज, मैं कोड लैब्स की ये लिंक शेयर कर रही हूँ, ठीक है? इन कोड लैब्स के लिंक पर जाकर व्हाट यू कैन डू, यू कैन परफॉर्म आगे वाले स्टेप्स, ठीक है? जैसे पार्ट 1 में मैंने 3rd स्टेप तक तुम्हें करके दिखाया, राइट? कि बॉयलर कोड कैसे तुम्हें मतलब करना है पूरा, ठीक है? अब इसके बाद एक्सटर्नल पैकेज है, स्टेटफुल विजिट कैसे यूज करना है, अभी हमने स्टेटलेस विजिट यूज किया, राइट? अब हम स्टेटफुल विजिट कैसे यूज करेंगे वो हमें देखना है। फिर हाउ टू क्रिएट एन इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग लिस्ट व्यू, ठीक है? और फिर नेक्स्ट स्टेप्स में व्हाट यू कैन डू, नेक्स्ट स्टेप्स में अपनी ऐप को कैसे इनहांस करोगे, इसी वाली जो हमने पढ़ा था ना कि स्टार्टअप के नेम्स जनरेट होंगे, 10 नेम्स रैंडमली जनरेट होंगे, जैसे जैसे तुम स्क्रॉल करते जाओगे वैसे वैसे नेम्स जनरेट होंगे, ठीक है? तो इसका पार्ट 2 भी है, ठीक है? अब इस पार्ट 2 में तुम क्या कर सकते हो, इस पार्ट 2 में तुम अपनी ऐप को इनहांस कर सकते हो, ठीक है? अब आपको इनहांस करोगे तो तुम उसके अंदर सेव कर सकते हो, अनसेव कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ये फंक्शनैलिटी भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं ये 3 लिंक दे रही हूँ, ठीक है? इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे वो हैं रिसोर्सेज हैं पढ़ने के लिए, ठीक है? फ्लटर को, डार्ट को, ठीक है? फायरबेस अगर इंटीग्रेट करना है, ऑब्वियसली हम आगे वाले सेशन में सीखेंगे फायरबेस कैसे इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है? बट फॉर दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग 2-4 ऐप की तुम्हें क्लियर होनी चाहिए कि कैसे ऐप्स बन रहे हैं, ठीक है? तो ये कोड लैब्स को प्लीज कर लेना, ठीक है? आने अब नेक्स्ट सेशन कब होगा वो मैं वहीं पे बताऊंगी डिस्कॉर्ड पे ही, ठीक है? बिकॉज अभी प्लान नहीं किया है, बट जब भी होगा मैं बता दूंगी, मार्च में ही होगा अभी कुछ टाइम में, ठीक है? तो उससे पहले ये कोड लैब्स कर लेना ताकि तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, ठीक है? सो यहाँ से है ये रही वो कोड लैब्स जो मैंने अभी दिखाई तुम्हें पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है? ये वाली कोड लैब्स यहाँ पर है, ठीक है? फ्लटर पार्ट 1, पार्ट 2, देन वेब पे कैसे करोगे, ब्यूटीफुल ट्रांजिशंस कैसे मटेरियल मोशन यूज करके कर सकते हो, ठीक है? तो तुम ये सब कर सकते हो, ठीक है? तो मैं ये तीनों लिंक शेयर कर रही हूँ ताकि तुम नेक्स्ट वाले सेशन से पहले एटलीस्ट इतना कर लो। हाँ, मैं यूट्यूब लिंक भी शेयर कर रही हूँ अभी, ठीक है? एक बहुत ही अ, अच्छे वो हैं फ्लटर डेवलपर, ठीक है? उनको रेफर कर सकते हो, पवन कुमार। जीडीएसई वाव में भी हमने उन्हें बुलाया था, ठीक है? एंड जीडीएसई वाव में भी हमने फ्लटर के सेशंस किए थे। हाँ, अनुभव माधव, पवन कुमार, तो उसमें भी हमने किए थे, ठीक है? जीडीएसई में भी फ्लटर के सेशंस किए थे, इंट्रोडक्टरी सेशंस। इफ यू वांट यू कैन डू दैट आल्सो। ये रही प्लेलिस्ट, यहाँ से पढ़ना, ठीक है? बहुत अच्छे से समझ आएगा फ्लटर कि कैसे हमें ऐप्स क्रिएट करनी है, ठीक है? सो दिस इज द प्लेलिस्ट जो कि तुम रेफर कर सकते हो, ठीक है? तो ये कोड लैब्स और ये यूट्यूब चैनल यू कैन रेफर, आँख बंद करके, बहुत अच्छा है ये, ठीक है? तो आज मुझे इतना ही समझाना था।
अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बट कोड लैब्स कर लेना, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मतलब फ्लटर सीखना ही है अच्छे से तो। If you have anything, then please ask, otherwise, we will end the session. Okay, thank you. Since you don't have any doubts, then we can end the session. Okay. Thank you. Bye and take care, everyone. Bye. Yes, stateless and stateful widget will be explained in the next session. Okay, I'm ending the meeting. Bye, everyone. Take care.